Namaste and welcome to the Tally Simplified by C. Vandana Dodia, your go-to YouTube channel for mastering the Tally. I'm thrilled to share with you the recording of my recent webinar hosted by TechFlow in their series of Skill at 100. The second session of there was on optimum utilization of Tally Prime for MIS. In the session, I have touched upon the latest feature of Tally MIS using dashboard. Now, which can be modified and altered and prepared as per the user requirement. Also, I have touched upon the quarterly reporting, scale factor, lakhs, hundred thousands, anywhere, however, whichever way you want to do, and many more practical tips. So, be you are an accountant, be you are an entrepreneur, you will love to learn. Let's go deep dive Tally Simplified by C. Vandana Dodia with me and do subscribe the channel. Thank you. I welcome you all to the second day of our Skills at the Rate 100 and thankful to all of you those who have joined, and special thanks to our speaker. We have today CA Vandana Dhodia ma'am. She is the founder of Vandana V Dhodia and Company, Mumbai. She has the goal of enhancing CA practice through use of AI tools, integrating with TelePrime. She has been member of AI in WIRC committee of ICI 24-25, convener Women Excellence Committee of JCAA 23-25. She has over 4,000 followers on LinkedIn and also a YouTube channel by the name Telesimplified by CA Vandana Dodhia. So today we are lucky to have her knowledge and experience from over 37 years long journey in finance and consultancy. Thank you, ma'am. And so we are really lucky that you will be teaching us today about one of the most important skill in everyday office. Excel ke baad, the next thing we go is Tally. Correct. First of all, good evening to one and all who is present here. And those of you who will be watching this video as a recorded video later on. And thanks to TechFlow Hub, we are giving an opportunity and building the community, as they say. They have a mission of skill at 100, जो मुझे वो अपने आप में अच्छा लगा. मैं भी खुद चाय पे चर्चा ऐसा चैनल चलाती हूँ जहाँ हम स्पीकर को इनवाइट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन में बात करते हैं ताकि हमें जो क्वेश्चन है उसके हमें आंसर मिले. हम सेमिनार वेबिनार हमारे सीए लोगों के तो होते ही रहते हैं, वो हम अटेंड करते रहते हैं. Now, here he asked me, because you are doing Tally Prime, can we have something for our participants on the MIS? Now, how many of you knows what is exactly you mean by Management Information System? MIS is a short name for Management Information System. और किस चीज को आप उसके साथ रिलेट कर रहे हो, क्योंकि वो हमें समझना पड़ेगा. So I'm here with my PPT. तो पहले तो समझ लेते हैं कि टैली प्राइम के अंदर various MIS reports for financial and business decision making available है, which will help you to monitor your performance, tracking cash flow, analyzing sales and purchases trend. कि किस प्रोडक्ट में हम ज्यादा सेल करेंगे या कब हमारा सेल ज्यादा अच्छा रहता है, सीजन क्या है, हमारा डेटर्स का परफॉर्मेंस क्या है, वो सब हमें टैली के अंदर सर्टन रिपोर्ट्स को देख के पता चल सकता है, which will help you business houses को optimizing their operation and improving their profitability. Basic some understanding कि MIS मतलब ऐसे रिपोर्ट्स है जिन्हें देख के बिजनेस पर्सन या बोलते ना मैनेजर्स, डायरेक्टर्स कैन टेक डिसीजन अबाउट द वे फॉरवर्ड फॉर देयर बिजनेस. सबसे पहले टैली के अंदर बैलेंस शीट, कितने लोग बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं और कैसे देखते हैं? तो ऑल्ट F1 से मैं पहले तो शट कर देती हूँ जो कंपनी मुझे नहीं चाहिए. ऑल्ट F3 से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो कंपनी आपको देखनी है. और आपको जब भी कोई कंपनी खोलते हो, मेरा सजेशन ये है DSS, शॉर्टकट है DSS, वो दबाने से आपको पता चलता है कि अंदर कोई ट्रांजैक्शन है कि नहीं. सो अगर मैं फिर से F3 कर ऑल्ट F3, मुझे नेशनल में कौन सा पीरियड में ट्रांजैक्शन है मुझे कैसे समझेगा? क्योंकि मैंने नेशनल एंटरप्राइज में ऑल्ट F2 मेरा ट्रांजैक्शन है 1/4/23 से 31/3/24 में. अगर आप स्टेटिस्टिक देखेंगे यहाँ पे 118 ट्रांजैक्शन है. पीरियड आपको यहाँ पे समझता है, तारीख कौन सी तारीख तक ट्रांजैक्शन हुई है. राइट साइड में आपको सब समझ में आता है, ग्रुप, लेजर्स, कॉस्ट कैटेगरीज.
ये सब चीजें अगर आप कभी किसी का ऑडिट भी एक्सेप्ट करना चाहते हो, किसी का अकाउंट राइटिंग का काम लेना चाहते हो, तो प्रीवियस ईयर का डेटा पहले आप ऐसे ऑब्जर्व कीजिए और फिर आपका कोटेशन भेजिए। आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि क्लाइंट का वॉल्यूम क्या है, और उस हिसाब से आप कोटेशन दे सकते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इज अ जस्ट टिप्स आई एम। नाउ कमिंग बैक टू, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पीरियड में डीएसएस डिस्प्ले स्टेटमेंट स्टेटिस्टिक्स करके हमने जानकारी ली कि हाँ 23 में ट्रांजैक्शन है हमारे लिए, जो हमें कुछ रिपोर्ट देखने के लिए इजी हो जाएगा नाउ। और लेकिन वो ट्रांजैक्शन अप टू अक्टूबर, यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट एंट्री भी दिखती है वो पर्टिकुलर कंपनी में कब तक की गई है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली डेटा हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे बोला बैलेंस शीट अगर आपको देखनी है, कैन यू सी नाउ दिस स्ट्राइप इज कमिंग। ये जो स्ट्राइप्स दिख रहे हैं वो कैसे आप सेट कर सकते हैं। F1 में मैंने सेटिंग्स में डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले स्ट्राइप व्यू, एनेबल स्ट्राइप व्यू फॉर वाउचर्स रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन, आर यू एबल टू सी? डिस्प्ले सेटिंग में आप जाके उसको एनेबल कर सकते हो। So most of the reports you will have a stripe view. Now this stripe view has come from Tele release 5.1. You should have a 5.1 release to enable stripe view. Okay? अब जब भी आप, अभी हम लास्ट ईयर का कंपेयर करना चाहते हैं किसी का भी, सो हमको आदत है, मतलब हमने अब तक सीखा है ऑल्ट सी करके हम प्रीवियस ईयर का डेटा उस कंपनी का देखते हैं बेसिकली। करेक्ट? अगर यहाँ पे हम जाते हैं, एक बैलेंस शीट है पूरे साल का अगर हम लेते हैं, और हमें आदत होती है ऑल्ट सी करके हम 1, 4, 22, 31, 3, 23, आर वी डूइंग लाइक दिस Yes. फॉर कंपैरिजन? तो अब ऐसा नहीं करते हुए, अगर हम अभी हमारा क्वार्टर एंडिंग, थर्ड क्वार्टर का एंडिंग हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और जैसे कि मैं यहाँ पे पीरियड टाइमिंग 24 से 25 भी डाल दूं, और मैं बैलेंस शीट में जाऊं, और फिर मैं करूँ ऑल्ट एन, और मैं करूँ कि मुझे क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए। ऑल्ट एन इज द शॉर्टकट की, मुझे क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए। यू कैन जस्ट सी Tally is bringing it in a quarterly format to me, and then Alt F1 I can drill down wherever, जितना वो ड्रिल डाउन हो सकता है। उसके बाद आप इसको, आपको चाहिए कि हमें जो दिखाना है फॉर लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, या कोई भी कंपनी में जब आपको क्वार्टरली रिपोर्टिंग उनको एमआईएस में दिखाना है, तो बेसिस ऑफ वैल्यू वो बोलेंगे हमें ना थाउजेंड्स में चाहिए, लैक्स में चाहिए। तो टैली के अंदर मैंने बेसिस ऑफ वैल्यू राइट साइड में बटन था वो क्लिक किया, और उसमें एक स्केल फैक्टर है, सो एंटर ऑन अ स्केल फैक्टर एंड यू कैन हैव अ लैक्स में आंसर। जस्ट मैंने लेग सिलेक्ट किया and my report is ready. Okay. Are you getting? So Yes. there are certain clicks of button. What happened कि एक तो मुझे बार बार वो क्वार्टर क्वार्टर सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, इन द वन गो विथ वन बटन पूरे साल का हर क्वार्टर का मेरे पास। मुझे चाहिए कि मुझे हाफ ईयरली चाहिए फॉर रिपोर्ट्स दिखाना है, सो आई कैन सिलेक्ट हाफ ईयरली ऑल्सो। सो इट जस्ट गिव्स मी टू variant. Okay? And then I can have selection of, say, past year, 1st April 23 to 31st March 24, okay, on actuals. तो वहां पे वो मुझे यहाँ पे 31st March 24 कॉम्बो दे रहा है। यहाँ पे आपको कॉम्बो चाहिए तो आप, ये अभी 6 मंथली एजेट दे रहा है, सो आपको पूरा साल का भी चाहिए। सो आई थिंक यू कैन जस्ट फिडल अराउंड द वे यू वांट टू प्रेजेंट दिस, एंड आप बाद में इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, या पीडीएफ में प्रिंट करके भी व्हाट्सएप, ईमेल सब रिपोर्ट को कर सकते हो टैली के अंदर से। तो हमने क्या सीखा? अच्छा, यहीं से अगर हम रिपोर्ट चेंज करते हैं, लाइक ऑल्ट जी, गो टू द अनदर रिपोर्ट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ज्यादा करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली देखना रहता है। क्वार्टरली रिपोर्टिंग, हाफ ईयरली, अभी मैंने हाफ ईयरली किया था। सपोज कि अभी ये लास्ट वाला मुझे नहीं चाहिए, तो आई कैन डिलीट द कॉलम। सो नाउ हाफ ईयरली हो गया, वापस मैं ऑटो कॉलम में जाके क्वार्टरली कर सकती हूँ। एंड दिस इज हाउ माय क्वार्टरली थिंग्स आर कमिंग। F12 शो परसेंटेज, अगर आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन इन टैली इज वेरी इंपॉर्टेंट। शो परसेंटेज, आपको अगर परसेंटेज वाइज सेल्स के परसेंटेज, इट विल टेक बेस सेल्स एज अ बेस, एंड whatever expense are there, it's a percentage of that. Exclude accounts with zero closing balance. Yes, we don't want something there is no transaction should come in my profit and loss. So it will, uh, छोटा बना देंगे रिपोर्ट को, थोड़ा easy to navigate, easy to view. आपको वर्टिकल चाहिए वर्टिकल, आपका अगर जीपी रेशियो चाहिए तो आप जीपी रेशियो के साथ देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ
इट विल लुक लाइक। सो थोड़ा सा कंडेंस रिपोर्ट हो गया। यहाँ आपको परसेंटेज भी एक साथ में दिखना चालू हो जाएंगे, जीपी रेशियो भी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सो आई थिंक थोड़ा सा भी आप थोड़ा फाइन ट्यून करेंगे और बाद में यही रिपोर्ट आप बेसिस ऑफ वैल्यू में चले जाइए, और यहाँ पे स्केल फैक्टर 100 में आप 100 में कर दीजिए, आपको चाहिए लैक्स में आप लैक्स में कर दीजिए। सो योर रिपोर्ट इज रेडी। वो कन्वर्जन का आपका टाइम बच जाएगा। जो आप एक्सेल में जाके एक्सरसाइज करते हैं वो करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ट टैली के अंदर अवेलेबल है हमारे पास। आर यू हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ फीचर? yes ma'am. हाँ। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। तो हमने दो तीन फीचर सीख लिए कि इससे फायदा क्या हुआ कि आपको परसेंटेज वाइज भी मिला। आपको जिस पीरियड का चाहिए आप वीकली भी कर सकते हो। अगर आप एक ही मंथ है उसमें वीकली मेरा क्या हुआ है वो भी आप चेक कर सकते। सो जस्ट एनालाइजिंग योर बैलेंस शीट एंड पीएनएल विद द एक्सपेंस रेशियो, आपको ये इजी हो जाएगा रिपोर्ट देखना। ओके, सो देन आई गो टू, सो और वो तो रियल टाइम फाइनेंशियल एनालिसिस है आपका। How many of you are using cash flow and fund flow reports? Now, ट्रैक्स ये कैश फ्लो होगा तो पूरा पूरा अकाउंट्स या पूरा बिजनेस अपना फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द टैली हैज ब्यूटी कि आपको अगर कभी फ्यूचर प्रोजेक्शन भी करना है, अगर, और मैंने बोला है आपको अभी टैली प्राइम में तो ऑल्ट जी ही करना है, और जैसे ही आप कैश फ्लो टाइप करोगे उसके रिलेटेड जितने रिपोर्ट है वो आपको दिखाई देंगे। जैसे कैश फ्लो मंथली समरी, कैश फ्लो पहले एक बार छोट एक्चुअल इनबिल्ट कैश फ्लो, ये पूरा मंथ का समरी उन्होंने दे दिया है। फिर इसमें जिस मंथ में चाहेंगे आप ऐसा एंटर करके, और फिर मुझे अगर पीरियड वाइज चाहिए तो मैं पूरा ऐसा देख सकती हूँ। मैंने 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी, व्हाट आई डिड वाज ऑल्ट F2, फर्स्ट जो था फ्रॉम स्टार्ट में स्पेस बार ब्लैंक स्पेस बार मारा, और नीचे जो था 31 जनवरी एज इट इज। सो यू विल हैव द ड्रिल डाउन फैसिलिटी, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पीरियड सिलेक्शन आपका पूरा कैश फ्लो आपको देखना इजी हो जाएगा कि आपने कहाँ खर्चा किया है, कहाँ आपका इनवर्ड है, कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ आपने आउटफ्लो किया है। ब्यूटिलाइज के कभी यहाँ पे आपने कैश फ्लो प्रोजेक्शन ऐसा रिपोर्ट देखा है टैली के अंदर? इट कैन प्रोजेक्ट फॉर अपकमिंग मंथ कि क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे बैंक अकाउंट से आप बोलोगे कि हमें उसके अंदर कैश भी इंकॉर्पोरेट करना है, तो इंक्लूड कैश अकाउंट मैंने एंटर किया, यस करना है। अगर सिनारियो वो बैलेंस शीट में मुझे एक सिनारियो दिखाना था, ए व्हाट यू मीन बाय रिवर्स जर्नल, एनीवन यूजिंग रिवर्स जर्नल? जब हम क्वार्टरली रिपोर्टिंग करते हैं या मंथली रिपोर्टिंग पीएनएल प्रेजेंट करना है, अभी डेप्रिसिएशन इज अ ईयर एंड एक्सरसाइज। एवरी मंथ में बैठ के डेप्रिसिएशन का जीवी तो मार ही नहीं सकता हूँ, और जरूरी भी नहीं है। टेली गिव्स मी फ्लेक्सिबिलिटी to not park the entry in the main books of account, but still give me the report considering that effect of that depreciation for that particular month or for that particular quarter, as the case may be. If you are giving the report to management for a quarterly P&L, or you are giving the report for quarterly monthly profit and loss, तो कभी कभी आप मंथली भी टर्नओवर ज्यादा रहेगा, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, सो मंथ ऑन मंथ people may require. So in that case सिनारियो वर्ड इज देयर। सिनारियो मीन्स मुझे सिर्फ क्वार्टरली रिपोर्टिंग देगा, या मुझे किसी कारणवश कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे चाहिए कि जो मुझे मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बात नहीं की है, बट इट शुड गिव मी रिजल्ट व्हेन आई एम गिविंग द रिपोर्ट टू माय मैनेजमेंट, सो दैट विल बी कवर्ड। एंड कोई ओवरड्यू होगा उसको भी लेके फिर वो, तो आपको यहाँ पे कैश इन एंड आ गया, और ओवरड्यू रिसीवेबल्स को भी वो कैश फ्लो के अंदर ट्रैकिंग करके दे सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द report which is inbuilt available in Tally. Okay, so cash flow projection हमने देख लिया। और अब जैसे मैंने बताया बैलेंस शीट में सिनारियो कैसे क्रिएट करते हैं कि मुझे वैसी कंपनी चाहिए जहां पे फिक्स असेट है, कोई फिक्स असेट रहेगा, वैसी वाली कंपनी अगर आप देखोगे इसमें कोई फिक्स असेट है क्या बैलेंस शीट में? देयर इज अ फिक्स असेट, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख है। अगर अपने को पता है तो कंट्रोल एन करके पहले मैं डेप्रिसिएशन समझो मैं दिसंबर तक का, मुझे फॉर एग्जांपल इसमें एंट्री अप टू अक्टूबर, चलो हम हाफ ईयरली सितंबर तक का लेते हैं डेप्रिसिएशन। सो वी ऑल नो 15% इज अ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से ऑन 10 years। एंड दिस डेटा के लिए हमें वापस से ऑल्ट F2 मेन स्क्रीन पे पीरियड चेंज करेंगे 31, 24,
बैलेंस शीट ऑल्ट F1, प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे सितंबर में कोई वैसा एंट्री नहीं है। अगर मैं देखना चाहती हूँ, नाउ बिफोर पासिंग दैट रिवर्स जर्नल आई वांट टू चेक इज देयर एनी रिवर्स जर्नल booked in this particular books of account. So how I can find it out? So there is again shortcut Alt G. आप डे बुक में जाइए. Day book will reflect every transaction if it is part. देखिए रिवर्स जर्नल डेप्रिसिएशन का मारा हुआ है. I wanted to teach you this कि you as a data entry operator or an auditor want to check whether any entry has been passed reverse journal. सो यहाँ पे आप देखो ऑलरेडी ये पास किया हुआ है रिवर्स जर्नल. अब आप पूछोगे कि क्या फायदे और कैसे करना है. रिवर्स जर्नल को हम एनेबल कैसे करेंगे, राइट? तो सबसे पहले जिनके पास आप ट्रांजैक्शन एंट्री करने जाओगे, ऑल्ट ए करके कहीं से भी आप कर सकते हो. अदर वाउचर्स में आप जाओगे और वहां पे आप रिवर्स जर्नल टाइप करो. जिनके पास नहीं है तो वहां पे वो पूछेगा एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप. सो यू हैव टू एक्टिवेट दैट वाउचर टाइप. वंस यू एक्टिवेट, अंडरस्टैंड के वो कट ऑफ डेट पे आपको जब वो रिपोर्ट देखना है या अप्रैल एंड, मई एंड, जून एंड, क्वार्टर एंड, जिस जिस तारीख को देखना है, जिस तारीख को आप एंट्री मार रहे हो, सो उसका इफेक्टिव डेट जनरली वो डेट को वो कैप्चर करता है और वो आपको एक रिपोर्ट दिखाता है. सो रिवर्सिंग जर्नल में हमने 50,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डाल के रखा था. ठीक है. अगर हम 10 लैक्स पे 15% पूरे साल का हो गया आपका, तो हाफ विल बी 5%, 7.5%, करेक्ट? 75,000. तो 50,000 किसी ने और मार के रखा है. मैं 25,000 मार सकती हूँ या पुरानी एंट्री को मॉडिफाई कर सकती हूँ. जस्ट टू शो यू आई एम पासिंग दिस एंट्री हियर. डेप्रिसिएशन 25,000 एंड अपना था प्लांट एंड मशीनरी, करेक्ट? तो ये आपका रिवर्सिंग जर्नल हमने पास कर दिया. सो आपके मेन बुक्स ऑफ अकाउंट को ये टच नहीं करता है. आप फिर से देख लीजिए. मेरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इज शोइंग मी 10 lakhs only. सो इट्स अ घोस्ट एंट्री. कहाँ चली गई एंट्री किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो एंट्री है कि नहीं है करके. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. So now how we have to see the report, right? I will like to see my profit and loss account. I want to see is for the period I told you के वो specific period के साथ काम करेगा. अब आप बोलोगे सिनारियो कैसे क्रिएट करते हैं क्वार्टरली रिपोर्टिंग. सो ऑल्ट जी में जाइए. जैसे कि क्रिएट मास्टर में जाएंगे, सिनारियो आपको टाइप करना है. SCE सिनारियो मैंने टाइप किया और क्वार्टरली या मंथली रिपोर्टिंग जो आपको बनाना है वो आप यहाँ बना सकते हो. क्वार्टरली रिपोर्टिंग और यहाँ पे रिवर्स जर्नल आपको इंक्लूड करना है टू गेट दैट रिपोर्ट. एंड कंट्रोल ए करके मैंने सेव कर दिया. सो यहाँ जाने मैंने पहले सिनारियो क्रिएट किया. मास्टर में जाके क्या जो नाम देना है इट्स यूजर फ्रेंडली, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन गिव द नेम. अब हम करेंगे ऑल्ट सी और नेशनल एंटरप्राइज सेम पीरियड. बट यहाँ पे अगर आपको क्वार्टरली रिपोर्टिंग जो मैंने अभी क्रिएट किया वो सिनारियो को हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो. 144.20, 143.45. आर वी गेटिंग? एक बार मैम सिनेरियो वाला रिपीट कर दीजिए अगर. हाँ फिर से दिखा देते हैं. एक मिनट. ये वो देखना था वो वैरिएंस के साथ. आपको मैंने बताया मैंने क्या किया. ऑल्ट जी में मैं गया क्रिएट मास्टर. क्रिएट मास्टर में यू हैव टू स्टार्ट टाइपिंग SC सिनारियो, देन इट विल गिव टू क्रिएशन में. सीधा वो आपको क्रिएशन में लेके जाएगा. अब मैंने ऑलरेडी बना के रखा है. ऑल्ट जी ऑल्टर मास्टर में जाके मैं जाके सिनारियो में जाऊंगी. ये 3 मेरे खड़े हैं वहां पे. यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो. बजट भी बनाना है तो जिनको बजटिंग करना है, एक्सपेंस वाइज बजटिंग, वो एक नया बजट बना सकते. सिनारियो इज ट्रैक फॉर रिवर्स जर्नल एज वेल एज फोरकास्टिंग बजट. यस. तो आर यू गेटिंग मी? तो मैंने आपको जो नाम, मैं मंथली रिपोर्टिंग भी दे सकते हो अगर एवरी मंथ आपको डेप्रिसिएशन एवरी मंथ P&L क्लाइंट को प्रोवाइड करना है या मैनेजमेंट को देना है बेसिकली. सो यहाँ पे जैसे जो नाम डालना है क्रिएशन करते हो तभी आपको आपका नाम डालना है वॉट एवर यू लाइक. ओके. सो अगर मैंने ये क्वार्टरली बनाया है तो आप देख सकते हो ये क्वार्टरली है. इंक्लूड एक्चुअल, यस.
एक्सक्लूड इन्वेंटरी ट्रैकिंग कैलकुलेशन, अभी मैंने उसको नो नो है, मतलब कि एक्सक्लूड नहीं करना है, वो इंक्लूड करना है अगर इन्वेंटरी है तो। ओके, और इंक्लूड रिवर्सिंग जर्नल, तो मुझे रिवर्सिंग जर्नल स्पेसिफिकली चाहिए। आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है तो वो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ज्यादा करके रिवर्स जर्नल का यूज लाइक प्रीपेड एक्सपेंस का भी आपको, समझो साल के शुरुआत में वी जनरली amortize certain expenses for say 5 years, ओके, तो एवरी क्वार्टर में उसमें से वो खर्चा आपको डेबिट करना है पीएनएल में। तो वो तो आपको ऐसे तो ईयर एंड एक्सरसाइज है, बट यूजिंग दिस रिवर्स जर्नल एवरी क्वार्टर एंड में इक्वेटेड अमाउंट का आप एंट्री पास कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल व्हाट आर द यूसेज। आपका प्रोविजन, आप सैलरीज का प्रोविजन भी आप एक्चुअल बुक्स में नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सीधा डेबिट करते हो सैलरी या व्हाट एवर सम एक्सपेंसेस व्हिच यू आर नॉट हैविंग बिल्स बट यू वांट टू फैक्टर इट एंड take it into the PNL projection या PNL actual scenario। मैम ये सिनेरियो क्रिएशन कहीं से एक्टिवेट करना पड़ता है क्या, या किसी वर्जन से ये एनेबल्ड है? शायद 2.3 ये सब में नहीं है क्या? किस वर्जन से ये एनेबल्ड है? होना चाहिए वो तो, टैली 7.2 में भी था, 9 में भी था, ERP 9 में भी था। अच्छा, तो कहीं से एक्टिवेट करना पड़ता है? नॉर्मल तो मैंने भी देखा नहीं है मैम, इसीलिए ये देखो डाउट मैंने भी है ग्रुप में। ये देखो टैली प्राइम 2.1 है। हम्म। अब आप अगर आपको उसका डेटा बेस चाहिए या फिर इट इज देयर, आई एम टेलिंग यू 7.2 से है ये सिनारियो। आप अभी चाहिए तो टैली स्टार्ट करके खुद देखिए, ऑल्ट जी में जाके, मतलब सिनारियो नहीं है तो एक्टिवेट वो पूछेगा आपको। ओके। ओके। Scenario has to be there. Reverse journal is a voucher type, so need to be created. Scenario तो जनरली अंदर होना ही चाहिए। Still if you say me F11 में कहीं enable करना है क्या, वो मैं देखती हूँ। Because it is inbuilt feature ना, जो जो inbuilt feature है ना, तो वो तो खाली आपको वापरने हैं, मतलब यूज करने हैं, और कुछ करना नहीं है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालनी है खुद की कंपनी की, ताकि उससे क्या होता है जब हम किसी क्लाइंट को बिल भेजते हैं तो अपना एमएसएमई नंबर प्रिंट हो जाता है। बहुत जरूरी है आजकल। और एमएसएमई रिपोर्टिंग भी है। अभी तो आधे घंटा ही हुआ है, हम बैलेंस शीट में ही घूम रहे हैं, देखो एमआईएस। यहाँ तक आपको अच्छा लगा कि नहीं? अभी प्रॉफिट एंड लॉस फिर से एक बार मैं दिखा देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के बाद ऑल्ट सी करके नेशनल एंटरप्राइज, पिक अप द डेट, चूज द डेट विच यू हैव गिवन इन रिवर्स जर्नल एंड टेक दिस एंड यस कर दिया। अब आप कंट्रोल एन करके 148.55 123 माइनस 143.45 5,10,000, मतलब हमने और भी डाल के रखा है एक्सपेंसेस जो वो फैक्टर कर रहा है। पहले तो ये पीरियड आपको 30 रखना है। कंपैरेटिव हैज टू बी सेम, 144.20 माइनस 143.45। मैं ना कंट्रोल एन यूज करती हूँ टैली का एक्सटेंसिवली। ये देखिए 75,000 नीचे दिख रहा है। तो आपको वैरिएंस एनालिसिस समझ में आया ना कि ये आपका लाइफ आसान कर सकता है। और मजे की बात क्या है, हर जगह पे आप बेसिस ऑफ वैल्यू तो कर ही सकते हो। स्केल फैक्टर हर स्क्रीन पे दिया है टैली ने। सीधा आपने ये किया, ऑल्ट F1 किया, आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दीजिए, इजी। और आप ग्रुपिंग भी ना लिस्टेड कंपनी के हिसाब से यहाँ बना सकते हो, लाइक एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंस कॉस्ट, यू नो, अदर जनरल रेवेन्यू। सो दैट विल आल्सो सेव अ लॉट्स ऑफ टाइम कि जब क्वार्टरली रिपोर्टिंग बनाना है तो आपको ये देखना इजी हो जाएगा कोई भी रिपोर्ट। ठीक है, सो बैलेंस शीट और पीएनएल में मुझे सिनारियो आपको सिखाना था, वो मैंने आपको बता दिया। लेट्स गो अहेड। कैश फ्लो में हमने देख लिया, फंड फ्लो भी है। सबने बेसिक तो फंड फ्लो देखा ही है टैली के अंदर। ऑल्ट जी, अभी ऑल्ट जी आ गया ना तो हम नेविगेशन नहीं करते टैली के अंदर, सीधा ऑल्ट जी करके टाइप कर देते हैं। 1/4/23 से 30/9/23। अब इसका फंड फ्लो में कुछ आया नहीं है इस कंपनी में, तो हम कोई और कंपनी देखें एक वहां पे फंड फ्लो हो रहा है कि नहीं। हाँ, ऑल्ट जी, मैं F3 करके दूसरी कंपनी में चले जाती हूँ। अच्छा, फंड फ्लो में मंथली समरी भी है और खाली फंड फ्लो भी लिखा है। तो मंथली समरी में जाएगा तो इसका पूरा साल का वो दिखाएगा आपको। जिसका आप एंटर करके ऑल्ट F1 करोगे तो उसका ड्रिल डाउन दिखेगा और नीचे आपको वर्किंग कैपिटल दिखेगा। फिर ऑल्ट F2 करके आप 1/4 से पूरे साल का भी एक साथ में फंड फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं। सो इट्स अप टू अस हाउ वी टेक दिस डेटा फर्दर।
शो परसेंटेज, यहाँ पे भी F12 मैंने प्रेस किया, शो वर्टिकल वो भी कर सकते हो, डिटेल कर सकते हैं, एंड स्ट्राइक भी अनेबल कर दिया। सो ओके विद दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स। सो आपको उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसी को आप वहां पे प्रेजेंट कर सकते हो। एंड और एक चीज थी यहाँ पे F12 में, enable strike multiple detail, ठीक है, तो सब कुछ हमने कवर कर लिया। थर्ड इज अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल रिपोर्ट्स। एमआईएस में सबसे ज्यादा हर इंसान की नजर होती है कि मुझे रिसीवेबल का स्टेटमेंट अच्छे से मिलना चाहिए। एम आई राइट? Yes, अभी एक ऐसा होता है, so हमारा प्रिमिटिव आइडिया क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, दिस इज हाउ द रिपोर्ट्स यू ऑल yes. वॉच। अब मैंने इसमें एक चीज बताना था, अब ये डेटा कितना प्रॉपर है, वो एज अ सीए या एज अ अकाउंटेंट वन नीड टू अंडरस्टैंड दिस रिपोर्ट बिल रिसीवेबल इज शोइंग मी 235,69,500। हम एक बार कंट्रोल एन करके 235,69,500 लिख लेते हैं, उसके बाद एस्केप करके ऑल्ट जी करके आप बैलेंस शीट में जाइए और आप आपका करंट एसेट में सन्ड्री डेटर्स का फिगर देखिए। इज इट राइट, इज इट रॉन्ग? योर बिल्स रिसीवेबल इज नॉट मैचिंग विद सन्ड्री डेटर्स। सो अगर मैं बिल रिसीवेबल का वो स्क्रीन देख के एजिंग एनालिसिस करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे दूंगा या दे दूंगी, विल इट मेक सेंस? तो आपको एक लॉजिक समझ में आया ना मैंने जो अभी बताया, कि कोई भी फिगर्स को फेस वैल्यू पे मत लीजिए, पहले अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड कीजिए। बराबर है ना? कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे दिया, बाद में आप बोलोगे नहीं भाई ध्यान नहीं दिया तो वैसा नहीं कर सकते अपन। सो 19,30,000 ये क्यों होता है, चलो अपन रीजन फाइंड आउट करते हैं। सो टैली हैज दी वन थिंग वेरी क्लियर, जब आप बैलेंस शीट का जो डेटर्स देख रहे हो वहां वो नेट करके आपको फिगर दिखा रहा है। नेट मतलब वट एवर हैज कम, इवन इफ इट इज नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट बिल बाय बिल, क्योंकि ये तो अकाउंट्स है ना, लेजर अकाउंट है, अकाउंट के अंदर तो आया गया और ओपनिंग प्लस एड एडिशन माइनस डिलीशन क्लोजिंग बैलेंस विल कम। एम आई राइट? व्हाट इज द फाउंडेशन फॉर लेजर? व्हेन यू व्यू द लेजर इट इज ओपनिंग ट्रांजैक्शन, ऐड होता है, डेबिट ऐड होगा, क्रेडिट माइनस होगा, क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा डेबिट क्रेडिट दैट विल बी डिस्प्लेड टू यू, करेक्ट? बट व्हेन यू गो टू बिल रिसीवेबल, वहां पे ऑन अकाउंट पेमेंट को कंसिडर करेगा ही नहीं, वो सीधा जितना बिल आउटस्टैंडिंग है वही रिपोर्ट आपको दे रहा है, इसीलिए बिल रिसीवेबल में ज्यादा दिख रहा है और इसमें कम दिख रहा है। आर वी गेटिंग? Yes, ma'am. हाँ, ग्रेट। अब मैं ऑल्ट जी करूं और यहाँ देखूं कुछ दिखता है क्या शो ओपन रिपोर्ट्स में। लकीली कुछ दिख रहा है, बिल रिसीवेबल दिख रहा है, सर। सो ये जो शॉर्टकट मैंने अभी यूज किया उसको स्विच व्यू कहते हैं टैली के अंदर। इफ यू ओपन 5-10 रिपोर्ट्स, ऑल्ट जी में जाके ऊपर वाले टैब में यहाँ पे देखिए शो ओपन रिपोर्ट्स, वो क्लिक करोगे तो आपने अगर 5-10 विंडोज खोल के रखे हैं टैली के अंदर भी, अब क्या है, यू कैन टॉगल बिटवीन वन स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन। यू डोंट नीड टू, मतलब मैं डाटा एंट्री कर रही हूँ और मुझे डायरेक्टर का फोन आया है, इसका आउटस्टैंडिंग कितना है, so I don't need to just escape या save the transaction. I can just press Alt G, go to that particular ledger and give the answer, or whatever query I have, I can get the solution to that query just being there, मतलब using Alt G shortcut function. Are you getting? So coming back to bills receivable, मैं छोटा छोटा यूसेज टिप्स भी साथ साथ में दे रही हूँ कि whenever you are working with Tally, you don't need to do escape from one screen if you already फिल्टर लगा के रखा है, काफी सारी चीज, आपका एक रिपोर्ट चल रहा है, कुछ आपने ऑलरेडी स्क्रीन पे रख दिया है एंड समथिंग यू वांट टू चेक, तो हम आइडियली दूसरा टैली भी ओपन करते हैं, तो उसकी वजह से मेमोरी का इश्यू आना चालू हो जाता है, क्योंकि ईच इंस्टेंस ऑफ टैली विल ईट अप सम मेमोरीज, करेक्ट? Yes, ma'am. सो विद इन द टैली इफ अगेन हम जो शॉर्टकट फंक्शंस टैली प्राइम के वर्जन में दिए गए हम उसको यूज करेंगे, तो दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज आवर एफिशिएंसी, टाइमली डिसीजन, टाइमली रिपोर्ट गिविंग एंड सेविंग द ओन टाइम। क्योंकि आज मैं बार बार एस्केप करूं, फिर आके वापस ऑल्ट F12 करूं या कंट्रोल F ऑल्ट कंट्रोल F करके फिल्टर मारूं, सो आई एम एक्चुअली नॉट डूइंग द राइट थिंग, करेक्ट? अच्छा, अब ये रिपोर्ट तो कुछ काम का नहीं है, ये कभी ए बी सी डी दिख रहा है, तो जनरली आपको राइट साइड में बटन है F8 लेजर बिल वाइज, यू शुड प्रेस दैट, देन यू शुड
फिर बाद में आप एजिंग मेथड लगा दीजिए, एजिंग बाय बिल डेट या ड्यू डेट जैसा भी आपका रहेगा। से हमको यहाँ पे ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, जैसे जैसे आपको करना है आप बना सकते हैं। सो वो आपके लिए रेडीली 30, 60, 90 एंड 19 अबो। अभी कॉर्पोरेट में 180 डेज एंड अबो है, तो आप दो ही फिल्टर लगा सकते हो, लेस देन 180 एंड मोर देन 180। But this report is again, I told you, faulty till the time you are not getting cleared on account payment. Are we getting? ऑन अकाउंट पेमेंट जब तक क्लियर नहीं होता है, रिपोर्ट विल बी फॉल्टी। मैम तो उपाय क्या है मैम? उपाय कुछ नहीं है, आप एज इंटरनल ऑडिटर जाओगे, सुनो, व्हाट वैल्यू एडिशन यू आर डूइंग टू द कंपनी इज दैट यू विल फर्स्ट इमीडिएटली, जैसे मैंने आज आपको सिखाया, तो आप जहां पे भी आप इंटरनल ऑडिटर हो, जहां पे आप कंसल्टेंट हो, आप उनको ट्रेन करोगे उनके, आपको तो मालूम पड़ जाएगा देख के ही, ये दो फिगर कंपेयर किया कि भाई बिल रिसीवेबल और वहां पे गलत है, तो आप उनको बोलोगे इमीडिएटली आप जो जो अकाउंट में इश्यूज है उसको जाके वो अगेंस्ट रेफरेंस करेगा। वो एक बार एडवांस में भी रख देगा ना, तो आपका रिपोर्ट सेम सेम पैरिटी में आ जाएगा। इट हैज टू बी हैव सम रेफरेंस। वो ऑन अकाउंट रहेगा तो वो यहाँ कैप्चर ही नहीं कर सकता है ना। ओके। द लॉजिक बिहाइंड दिस रिपोर्ट इज दैट इट इज गिविंग मी, यहाँ पे ये रेफरेंस के साथ आता है। तो अगर वो ऑन अकाउंट की जगह पे न्यू रेफरेंस, एडवांस, व्हाटएवर वांट टू यूज, वन कैन यूज, सो देन रिपोर्ट विल नॉट बी फॉल्टी, एंड वी हैव टू एजुकेट द क्लाइंट फॉर दैट ना। फिर F4, अभी ये स्क्रीन मेरी ऑलरेडी फ्रीज हो गई है, तो मैं डेटर्स की जगह पे क्रेडिटर्स डायरेक्टली कर सकती हूँ वहां पे खड़े खड़े। अंडरस्टूड? अभी जैसे कि इन्होंने नाम दिया था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट्स इन टैली प्राइम में, डैशबोर्ड कितने लोगों ने वापरा है? डैशबोर्ड इज कमिंग फ्रॉम टैली 4.0 वर्जन। टैली 4.0 ऑनवर्ड डैशबोर्ड आ गया है। अब हमने काफी सारे डैशबोर्ड बना के रखे हैं, दीज आर पोर्टेबल डैशबोर्ड। एक होता है जैसे कि सीए डैशबोर्ड। सीए को डेटा देखना है तो क्या करेगा? सीए वांट्स टू सी जीएसटी की लायबिलिटी क्या है, कैसी है। और यहाँ पे आप खास तो पीरियड देख लेने का, जब भी देखना है। और अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है तो सीए इमीडिएटली बोल देगा, भैया ये डेटा आप लो, ट्रांजैक्शन को ठीक करो, फिर हमको भेजो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन। एट अ ग्लैंस यू गेट, दिस इज कॉल्ड टाइल्स, इसको टाइल्स कहा जाता है। यहाँ से यहाँ मैंने माउस से जंप किया है, उसका कोई ऑल्ट टैब ऐसा कुछ है, शॉर्टकट कीज। और टैली की ब्यूटी क्या है, आप जो भी टाइल्स के ऊपर खड़े हो और आपको कुछ देखना है, आप एंटर करके आपको डायरेक्ट रिपोर्ट के अंदर लेके जाता है, एंड देयर यू कैन रिजॉल्व द क्वेरीज। तो व्हाट इज माय रोल टुडे इज दैट ये जो टाइल्स है ये हम जैसे हमको चाहिए वैसे बना सकते हैं। यहाँ पे बार है, यहाँ पे लाइन है, तो यहाँ पे जाके मुझे कॉन्फ़िगर टाइल में जाके मंथली की जगह पे क्वार्टरली, ये सब ऑप्शन है। ग्राफ चाहिए, डेटा एंड ग्राफ चाहिए, बात चाहिए, फिर आपको कौन सी पोजीशन पे चाहिए वो स्लाइड, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। और ये तो आप देखिए यहाँ पे मंथ वाइज सेल्स फिगर आ गए, और ये मेरा चार्ट हो गया। नाउ दिस कैन बी एक्सपोर्टेड, दिस कैन बी ईमेल, दिस कैन बी प्रिंटेड इन पीडीएफ, दिस चार्ट, दैट्स विल सेव योर लॉट्स ऑफ टाइम। ये हो गया सीए का डैशबोर्ड। अब आप बोलोगे हमें मैनेजमेंट को देना है। जनरली मैनेजमेंट को डैशबोर्ड माई उनको परचेस वाला, परचेस डिपार्टमेंट है तो परचेस का स्पेसिफिक परचेस का भी डैशबोर्ड अलग से बना सकते हैं। उनको ट्रेडिंग डिटेल्स, परचेस अकाउंट चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, टॉप स्टॉक ग्रुप्स चाहिए, आप डिफाइन कर सकते हो। टॉप स्टॉक ग्रुप चाहिए, ये मेरे नेम ऑफ द टाइल्स तो बताना नहीं है, जो आपको रखना है आप नाम रख सकते हो। उसमें आप ग्रुप वाइज भी बना सकते हो, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। इसमें सिर्फ प्राइमरी है, मुझे अलग अलग ग्रुप का एक साथ में स्क्रीन पे चाहिए तो मैं वैसे भी बना सकती हूँ। फिर यहाँ पे हाईएस्ट लोएस्ट मेथड ऑफ शोइंग टाइल डिटेल्स, हाईएस्ट लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट, वो आपके पास चॉइस है। आइटम वाइज देखना है, ग्रुप वाइज देखना है, वो आपका चॉइस है। आपको इनवर्ड देखना है, आउटवर्ड देखना है, क्लोजिंग बैलेंस देखना है, दैट्स आल्सो योर चॉइस। तो आप एक इनवर्ड की टाइल बना दिए, एक आउटवर्ड की और एक क्लोजिंग की, वैसे भी आपको स्क्रीन पे दिख सकता है।
आपको कैसे उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसको भी आपको रिपोर्ट दिखाना है, वो हिसाब से आप सेव कर सकते हो। अगर मुझे जीरो बैलेंस तो देखना ही नहीं है तो then- अच्छा, नंबर ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आइटम टू डिस्प्ले, वो भी मेरे हाथ में है। मुझे 6 देखने हैं, मैं 10 देखने हैं, जितना मेरा मूविंग आइटम है, इसे आप देख सकते हैं। और डेटा एंड ग्राफ कितना है, बार कितना है, कौन से जगह पे देखना है, वो भी आप डिसाइड। तो आप देख सकते हो कि अभी ये यहाँ पे ये ऐसे, मैंने एक्सपैंड टाइल को क्लिक किया तो वो वैसा स्क्रीन पे मुझे ऐसे दिखेगा रिपोर्ट। और एक साथ में पीरियड मुझे चेंज करना है, और ऑल टाइल्स का मैंने राइट साइड में जो बटन है वहां से F2 लेके, समझो मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का देखना है, तो मैं ऐसे फर्स्ट क्वार्टर का देख लूंगी। क्या मेरा टॉप स्टॉक ग्रुप है, 4 आइटम का ही उनका काम हुआ है। और यहाँ पे देखो ओवरड्यू पेबल्स, ये परचेस डिपार्टमेंट के रिलेवेंट ही हमने बना के दिया है। टॉप परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के उनको इमीडिएटली क्या बाकी है वो देखना इजी हो जाए। दे कैन ड्रिल डाउन टू परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, जहां जहां आगे आगे ड्रिल डाउन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू ऑल्ट जी, जैसे बताया था सेल्स डैशबोर्ड भी है। अब ये देखते देखते आप बोलोगे कि ये तो आपने बना के रखा है, तो दिस इज पोर्टेबल ऑल्सो। और अगर मुझे कुछ नया ऐड भी करना है, सो आई कैन ऐड टाइम। और इतने सारे उस कंपनी में जो जो अवेलेबल है, वो आप सेल्स है, तो कंपनी वाइज अगर मुझे कंपनी वाइज कंपैरिजन दो कंपनी की साथ में ग्रुप कंपनी की करनी है, तो वो भी कर सकता हूँ। यू कैन हैव वॉट एवर वे यू वांट टू सी। फिर मैंने स्टॉक आइटम ट्रेंड डाला, पर्टिकुलर आइटम लिखा है इसलिए, अगर मैं ग्रुप डालूंगा तो ग्रुप का ट्रेंड आ जाएगा। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज, यू योरसेल्फ कैन कीप क्रिएटिंग, एंड देन बाद में सेव यू है यहाँ पे, उससे सेव कर देने का नाम नया देख के। whenever you do any correction, तो उसको पुराने में ओवरराइड करना है तो वैसे, या एक नया नाम देके करना है तो वैसे। ओके। एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि इंडिविजुअल एक्सपोर्ट होता है या कैसे, मतलब। हाँ, जब आप ऑल टी करोगे तो देखो करंट भी है, ऑल टाइल्स भी है। जहां खड़े हैं, जो ऑरेंज शोज करंट। हाँ, आपने देख लिया ना, करंट या ऑल टाइल्स, जैसे आपको करना है। प्रोग्राम फाइल्स टेलीप्राइम। ये ऐसे आ गया, सेल्स ट्रेंड, ग्रुप ट्रेंड, ट्रेडिंग डिटेल्स, स्टॉक ग्रुप्स, कैश बैलेंस। तो यहाँ पे वो हमारे लिए क्या लेके आता है, डेटा लेके आ रहा है। ठीक है। इनबिल्ट टैली में जैसे ही आप चालू करते हो, तो 6-7 टाइल्स रेडी रहती है। और वो मैनेजमेंट को स्टार्टअप में चाहिए तो F1 सेटिंग्स, स्टार्टअप, यहाँ पे देखिए ओपन डैशबोर्ड ऑन लोडिंग ऑफ कंपनी, यस। यहाँ पे यस करेंगे तो जैसे ही आप चालू करोगे, जो जो मैनेजमेंट का डेस्कटॉप है उसमें चालू हो जाएगा। आप किसी यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो यूजर में जाके डेटा सिक्योरिटी में, कंपनी में जाके वहां पे आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि मुझे उनको नहीं दिखाना है, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है।
यूजर रोल्स जहाँ पे हैं, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो यहाँ पे आप डिसअलाउ, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो उसको क्या नहीं देखना है। सो डैशबोर्ड नहीं देखना है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो यहाँ से, मतलब डिसअलाउ में जाके फुल फुल एक्सेस नॉट अलाउ। ओके, क्योंकि मेरे मेरे जो टाइल्स है वो मुझे ही देखने हैं, मेरे डेटा एंट्री ऑपरेटर को नहीं देखना है। सो यू कैन रिस्ट्रिक्ट द यूजर, क्योंकि ये टाइल्स वाला जो है ना, ये एमआईएस आप खुद बना सकते हो अच्छे से। बिल टेलिंग में 6-7 टाइल्स बन के ही आती है, रिसीवेबल्स, पेबल, कैश फ्लो, आउटफ्लो, अकाउंटिंग रेशियो, डायरेक्टली आपको यहाँ पे सब दिखता है मेन स्क्रीन के ऊपर। और कॉस्ट सेंटर वाला, जिनका इंप्लीमेंट होता है कॉस्ट सेंटर, वो खुद फिर ऐड कर सकता है टाइल्स के अंदर। सो स्काई इज द लिमिट व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग अ डैशबोर्ड। जैसे कि मैंने बताया, एड टाइल में जाके आप इतना सारा यहाँ पे, मतलब जितने रिपोर्ट्स जितने ज्यादा आपने इंप्लीमेंट किया है टैली, ये टाइल्स उतनी ज्यादा बनती जाएगी, मतलब दिखाई देगी आपको। खाली मुझे ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखना है, ग्रुप ट्रेंड देखना है, लेजर ट्रेंड देखना है, तो उन्होंने स्पेसिफिक थोड़ा सा कार्व आउट करके भी दिया है आपको कि आपको क्या ऐड करना है। सो इंटरनल एमआईएस पे थोड़ा आप स्टडी करोगे, तो होमवर्क करोगे तो इजी हो जाएगा। अच्छा, अभी पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटा रिपोर्ट्स कितने लोगों ने दिया देखा है? लेजर, पेमेंट परफॉर्मेंस 100 मोर में आएगा चेंज व्यू में। उसमें वो हमें दिखाता है नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ ड्यू डेट्स के कितना वो उनका क्या है परफॉर्मेंस फॉर्मूला, क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज। सो व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ दिस क्लाइंट, इसका एवरेज कितना परफॉर्मेंस क्या है, 140 डेज। पेमेंट उतने टाइम में रिलीज होता है। दिस इज ऑल्सो गुड रिपोर्ट फॉर दोज ऑफ यू, मतलब जिनको ट्रैक करना है कि इस क्लाइंट को कितना जल्दी फॉलो अप करना पड़ेगा, उसका ट्रेंड एनालिसिस क्या है, वो कितना जल्दी आपको पेमेंट देता है। सो पेमेंट परफॉर्मेंस इज अवेलेबल। मैंने कैसे किया, क्लाइंट में जाके मैंने यहाँ पे चेंज व्यू में जाके, शो मोर में जाके, पेमेंट पेमेंट पेमेंट, आई एम ऑलरेडी इन दैट रिपोर्ट एक्चुअली। सो व्हेन यू आर इन अ पेंडिंग बिल्स या F12 करके आपको चाहिए तो ऑल बिल्स भी कर सकते हो। अच्छा, नाउ जिन जिन लोगों ने टैली 5 चालू कर दिया है, उसमें शो आईटीसी एट अ रिस्क एंड बैलेंस अमाउंट, वो भी आ गया है, जीएसटी स्टेटस भी आ गया है। जीएसटी स्टेटस का मतलब क्या है, अगर मैंने डेटा डाउनलोड किया जीएसटी की वेबसाइट से, यहाँ पे अभी नाउ टैली 5 में आप जीएसटी रिटर्न्स टू, पूरे रिटर्न्स 1, 2A, 2B, 3B सब साइट से डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज एपीआई इंटीग्रेशन हो चुका है। सो देन अवेलेबल ओनली इन बुक्स एंड अवेलेबल ओनली इन पोर्टल और रिकनसाइल, दैट विल बी द आंसर। सो वो सब फैसिलिटी भी नए वर्जन में आपको मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर इसके अंदर जीएसटी के हमने डेटा अगर खींचे नहीं है, वी कैन गो टू अनदर कंपनी वेयर एटलीस्ट वी कैन हैव सम डेटाबेस। हम एक्चुअली ये जो क्लाइंट देख रहे हैं, तो जिसका कुछ पेंडिंग रहेगा उसमें देखोगे तो आपको वो रिपोर्ट थोड़ा समझ में आए। सन्डे ट्रेडर्स का एमआईएस की बेसिस पे रिस्क, जब पेमेंट आपको किसी क्लाइंट को करना है, तो आप देखोगे ना कि भैया आउटस्टैंडिंग में पेमेंट तब करूंगा कि जब मेरा आईटीसी रिस्क पे है या नहीं है। सो लेट्स गो टू द करंट ईयर डेटा ऑफ सम लाइक कंपनी F3, और हमारा रिपोर्ट था ऑल्ट जी, बिल्स, पेबल्स, कंट्री, रिस्क 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 लिख रहा है। ये उन्होंने लिखा है बिल्स रिसीवेबल, सन्डे क्रेडिटर्स, वो प्री डिफाइंड करके रखा है। अनसर्टेन, अवेलेबल ओनली इन बुक्स।
So now these kind of reports are also coming. अगर हमने पार्टी का क्लाइंट का उद्यम नंबर डाला है तो वो यहाँ पे वो पर सेटिंग करके देगा आपको। रिपोर्ट्स फाइन ट्यून हो चुके हैं, मतलब यू कैन टेक अ डिसीजन कि भाई इतना मेरा टैक्स लायबिलिटी बाकी है तो मैं उतना रख के बैलेंस का पेमेंट करूँ। सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी रिपोर्टिंग में आ चुकी है। सो यू मस्ट बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट यू शुड चेक दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स। दैट्स एडवाइस। F12 सबसे ज्यादा आप यूज कर सकते हो। इन्वेंट्री डिटेल्स कब देखनी चाहिए? जब जो जो इंडस्ट्री में इन्वेंट्री के साथ भी कि भैया ये इन्वेंट्री में इतना मेरा ब्लॉकेज हो रहा है या मुझे कितना देना है, आप यूज कर सकते हो। 9 बज गया है लेकिन एक 4-5 मिनट में लूंगी, वो इन्वेंट्री का भी मुझे थोड़ा एक मॉड्यूल दिखाना है। सो बिफोर वी, बिकॉज हमने 5 मिनट थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया। सो आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इन्वेंट्री के साथ भी आप रिपोर्ट देख सकते हो F12 में जाके। ओके। डिफरेंस इन टैक्स लायबिलिटी अनसर्टन है क्योंकि वहां पे उसके पास डेटा अवेलेबल नहीं है। किसी में रहेगा तो वो दिखा सकते। अब देखो इसमें रिकनसाइल्ड आ गया क्योंकि साइट के साथ वो मैच हो गया है ऐसा। यहाँ पे अगर हम नीचे जाके देखेंगे तो करंट में अभी देखो जनवरी का 2B कल फाइनल होगा। आज लास्ट डेट है IFF वाले लोगों की। तो कल से हमको मिलेगा। तो तब तक वो रिकनसाइल ही नहीं हुआ है तो वो अवेलेबल ओनली इन बुक्स ही दिखेगा। जब हम डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद हमको जनवरी के रिकनसाइल हो जाएंगे। तो वो थोड़ा दिखा देती हूँ डाउनलोड कैसे करना। यहाँ जाके डाउनलोड GST रिटर्न करके है, वो पूछेगा रजिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर कर देने का। माने यादव का फोन। तो ये पूरा आपको कॉन्फ़िगर करके आप वन टाइम OTP डाल के ये डाउनलोड सब कुछ वो अंदर लेके आएगा। और अच्छा अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे वैल्यू एग्जिस्ट, देखो ऑल रिटर्न्स लेने हैं, 2A लेना है, एक 2A लेना है मेरे को। समझो कौन से पीरियड का चाहिए। रिटर्न पीरियड में जैन टू जैन अगर मैं लेना चाहती हूँ और इसको कंट्रोल A करके डाउनलोड सेंड OTP, तो वो OTP के साथ काम हो जाएगा। एक पूरा एक इंटीग्रेशन हो गया है आपका, क्या बोलते हैं उसके साथ, टैली का और GST पोर्टल के साथ। तो वो भी पूछेंगे कि वो कैसे करना है। तो यहाँ F11 में यस करके आपको ना यहाँ पे यूजर नेम डाल दीजिए। F11 में GST में जाके आप GST यूजर नेम डाल दीजिए। और आई थिंक फर्स्ट टाइम जब हम GST में लॉगिन करते हैं ना वहां पे प्रोफाइल में जाके वो लेफ्ट साइड में API को ऑन कर देने का 30 डेज के लिए। और एक बार OTP लिया ना तो 6 घंटे तक चलता है, 6 आवर्स तक ये वैलिड रहता है अभी का OTP, मोटा मोटा। ओके। सो हम जाएंगे नेक्स्ट पे। हमने ये देख लिया। अभी तो थर्ड स्लाइड है, किधर है? अभी थर्ड पॉइंट पे इन्वेंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ही पूरा एक आधा पौना घंटा निकल सकता है, इतना है। बट आई जस्ट वांट टू गिव अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ इट। ये सबसे पहले तो ये स्टॉक समरी। अब ज्यादा करके लोगों का कैसा आता है, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक लिख के आ जाता है। अब मैंने डिफॉल्ट सेटिंग करके रखा है मेरे टैली के अंदर। ये मैंने कैसे किया डिफॉल्ट, आई विल टीच यू। मुझे ऐसे ही देखना है रिपोर्ट। कैसे देखना है? तो आप लोग करते हो यस करते हो, शो क्वांटिटी करते हो, फिर हर टाइम करते हो यहाँ जाके शो ओपनिंग बैलेंस यस, गुड्स इनवर्ड्स यस, गुड्स आउटवर्ड यस। फिर जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है क्लोजिंग बैलेंस यस, शो आइटम्स विद जीरो क्वांटिटी इन बैलेंस यस रखना है करो, एक्सक्लूड डिटेल विद नो ट्रांजैक्शन। ये मैं करती हूँ एक्सक्लूड डिटेल्स विद नो ट्रांजैक्शन, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, वो लाइन आइटम वहां खड़ा रखने का मतलब नहीं है। फिर यस करते हैं, यस करते हैं और सॉर्टिंग मेथड एनेबल स्ट्रिप व्यू यस कर दिया। अब आप इसको सेव व्यू कर सकते हो। और मैंने सेट दिस एज द डिफॉल्ट व्यू, मुझे हर बार देखना है तो वो डिफॉल्ट करना पड़ता है। शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन ऑल कंपनीज ऑन दिस कंप्यूटर, या यही कंपनी में चाहिए। मैं तो ऑल कंपनीज में करूंगी, जहां जहां जाना है मुझे स्टॉक ऐसे ही देखना है। व्हाई एवरी कंपनी आई विल क्रिएट दिस सिनारियो।
सेव द मास्टर विद सिलेक्टेड टू ओपन द रिपोर्ट, वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेगी तभी आप मास्टर के साथ करो। सेव द सिलेक्टेड पीरियड, अभी ये सिलेक्टेड पीरियड कब कब यूज करना चाहिए, आपको लास्ट मंथ का जीएसटीआर 1 करना है, लास्ट मंथ का जीएसटीआर 3 भी करना है। तो जब आप स्क्रीन पे जीएसटीआर 1 वो पर्टिकुलर मंथ का खोलते हो, इमीडिएटली आप सेव कर लीजिए जीएसटीआर 1 फॉर जनवरी या जीएसटीआर 3 भी फॉर जनवरी। तो जब तक वो फाइनल नहीं होता है, आप खाली ऑल्ट जी में जाके जीएसटीआर 3 भी जैन को क्लिक करोगे, वो सीधा आपको वो स्क्रीन पे लेके जाएगा। यू डोंट रिक्वायर टू कीप ये। आप जब आप क्वार्टरली एंडिंग कर रहे हो तो ट्रायल बैलेंस को सेव कर लीजिए वो क्वार्टर के डेट पीरियड के साथ, या जब अभी मार्च 25 में अपना ईयर एंडिंग आएगा तो उस टाइम पे हम लास्ट ईयर की जब भी ट्रायल बैलेंस देखनी है तो वो स्क्रीन लेके डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन उसको सेव एज करके पीरियड के साथ सेट कर देगा, क्योंकि फिर तो नहीं तो हर टाइम फिर वही मंथ खुलते रहेगा। तो वहां पे डिफॉल्ट वर्ड नो रहेगा, बट बाकी सब में यस रहेगा। जितना थोड़ा सा क्वेश्चन, वर्ड ऑफ क्वेश्चन। तो सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड कब होता है कि मुझे सिर्फ उसी पीरियड पे कंटिन्यूस काम करना है, तो मैं वो रिपोर्ट को वैसे सेव करके रख लूंगी। बट स्टॉक रिपोर्ट तो मुझे रियल टाइम चाहिए, करंट डेट के साथ साथ चाहिए, तो मैं वहां पे पीरियड को सेव नहीं करूंगी वैसे। तो जो मैंने पुराना मेरा फॉर्मेट था उसके ऊपर ये ओवरराइड किया, मतलब वो उसी के ऊपर। अब वो स्ट्राइक व्यू था नहीं पुराने वाले रिपोर्ट मैंने सेव किया, तो अभी मैंने एफएल यस करके पुराने रिपोर्ट के ऊपर भी उसको सेव कर दिया। एक हो गया कि सेव व्यू से आपको ये रिपोर्ट ऐसे ही दिखेगा। अब होता है मैनेजमेंट को क्या दिखना रहता है, क्या मेरी ट्रेंड एनालिसिस है, क्या मेरा हाईएस्ट मूविंग है, मेरा क्या स्टॉक समरी। अभी देखो स्टॉक समरी, माय वीडियो, स्टॉक समरी, ग्रुप व्यू, आउटस्टैंडिंग एमएसएमई बिल, ये सब ना धीरे 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 एक एक रिपोर्ट आपको डिजाइन करके बनाते जाना है। दैट विल फॉर्म योर एमआईएस बेसिकली। अब इसमें कुछ है नहीं करके आपको दिख नहीं रहा रिपोर्ट, जिसमें कुछ डेटा रहता तो इंफॉर्मेशन मिलती थी। अब मुझे दिखाना था आपको ऑल्ट जी, स्टॉक क्वेरी इज द ब्यूटीफुल रिपोर्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज ये ना, हर जहां पे ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग में टैली यूज कर रहे हो और इन्वेंट्री इंप्लीमेंट की है, तो वन मस्ट यूज इट, यू नो, जस्ट टू शोकेस यू समथिंग। लाइक अभी ये सिल्वर, इसमें आपको देखो क्या ऊपर नाम आता है प्रोडक्ट का, वो कौन से ग्रुप में है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्टिंग मेथड क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, कैटेगरी अगर होगी तो दिखेगा। फिर यहाँ पे लास्ट परचेस किस क्लाइंट से लिया था, फिर लास्ट किसको सेल किया था, सो एवरीथिंग इन वन पर्टिकुलर स्क्रीन। अब इसको भी मैं F12 से अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे कैसे चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, मुझे रिमार्क्स चाहिए, मुझे स्टेट्यूटरी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे रीऑर्डर्स चाहिए, मुझे हर गोडाउन, सो ऑल गोडाउन बेचिस इंक्लूडिंग जीरो बैलेंस। आपको जिस हिसाब से डिजाइन करना है, नंबर ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन आपको 8 दिखनी है, आप 8 देखो, आपको 10 दिखना है 10 देखो। सो और सेम ग्रुप का आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, तो कंट्रोल। तो नीचे से वो निकल गया रिपोर्ट, मुझे वो दिखाना था आपको। इट विल रिमूव फ्रॉम द डाउन स्टॉक ग्रुप। बट इसी ग्रुप का अगर कुछ मुझे और कंपैरिजन करना है तो मैं यहाँ पे शो आइटम्स, सो स्टॉक आइटम्स ऑफ द सेम स्टॉक ग्रुप, उसमें कुछ मूवमेंट हो रही है तो वो फिर वहां पे वो दिखाई देगा। यस करेंगे तो वो इट विल ब्रिंग कि वहां पे कोई मूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है। जैसे अगर हुई होगी तो फिर वो वहां पे एंटर करोगे तो वो उसी पे डायरेक्ट आपको लेके जाएगा और उसी का पूरा स्क्रीन दिखा देगा। इसमें ट्रांजैक्शंस नहीं है, क्योंकि ये देखो लास्ट परचेज आइटम से लिया था मैंने जून 23 में, उसके बाद कोई शॉपिंग नहीं है। सो बेसिकली दिस इज हाउ इट शुड बी। सो ये जो जो रिपोर्ट्स है, ये आप देखो वाउचर एंट्री के टाइम पे भी आपको दिखता है ये रिपोर्ट कैसे। अगर मैं ऑल्ट ए करके ऑल्ट जी में जाऊंगी, पहले सॉरी मैं गलत, जो स्क्रीन पे ऑल्ट जी, यहाँ पे क्रिएट वाउचर में मैं गई और यहाँ पे मुझे स्टॉक क्वेरी के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया है ऑल्ट एस करके शॉर्टकट दिया है उन्होंने। देन आई कैन सी फॉर माई whichever item I want to check. Are you getting? Yes, ma'am. हाँ, सो दैट इज हाउ इट विल बी। और वहां पे आपको पीरियड डिफाइन करना बहुत जरूरी है ताकि आपको इंफॉर्मेशन जैसे चाहिए वैसे मिले। कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, तो वहां पे यहाँ पे जब वो एंट्री करने जा रहा है उसको क्वेरी मीन्स कुछ भी देखना है इंफॉर्मेशन। लास्ट क्रेडिट प्राइस क्या थी उस बंदे के साथ, कभी लास्ट सेल हुआ था, या मेरा इनवर्ड प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस,
So everything can be gauged using, और मैंने शॉर्टकट यूज किया Alt S while I was in the data entry module। और ये हम यहाँ पे कैसे आए थे कि डायरेक्ट Alt G में मैंने टाइप किया था स्टॉक क्वेरी, स्टॉक क्वेरी। अब आप बोलोगे ये तो आप Alt G करके जा रहे हो, तो यहाँ पे कहाँ पे है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री में है, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में सबसे पहला आइटम उन्होंने स्टॉक क्वेरी दिया है अपने को। उसके बाद मूवमेंट एनालिसिस भी है। तो मूवमेंट एनालिसिस गोज इनटू दी, यू नो, हर तरह से आप उस मूवमेंट को देख सकते हैं। स्टॉक ग्रुप, उसमें आपको कौन सा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल फिनिश गुड्स ही देखेगा, इनवर्ड आउटवर्ड इमीडिएटली वो आपको दिखा देता है। और यहाँ पे भी आपको मैंने जैसे बताया था ऑल टाइम करके, आपको जैसे मंथली चाहिए, फोर्टनाइटली चाहिए, तो आपको जैसे रिपोर्ट चाहिए वो ऐसे बना के दे देगा, इनवर्ड आउटवर्ड। ओके, सो विद द लिमिटेड टाइम, मुझे लगता है एक सेकंड सेशन और करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। दैट्स माय सजेशन लोकेश। श्योर मैम, श्योर। हाँ, वी आर जस्ट रीच सर्टेन लेवल, और भी बहुत कुछ है जो हम टैली में एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड द टाइम इज, सबको अभी डिनर टाइम भी हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए आई शुड एंड हियर। व्हाट इज योर सजेशन, यू लेट मी नो। हाँ, एनी। क्योंकि स्टॉक क्वेरी फीचर इन टैली प्राइम इज अ पावरफुल टूल दैट हेल्प्स बिजनेस एफिशिएंटली ट्रैक एंड एनालाइज स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एजिंग तो हम सबको मालूम ही है, क्योंकि हम पीरियड डालेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी, तो वहां पे कैसे होता है, ये स्टॉक समरी में जब आप जाते हो, यहाँ पे ना शो प्रॉफिट करके भी फिगर है, बाजू में विंडो ही दिया है उन्होंने, तो सीधा डालो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखना चालू हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। हाइड प्रॉफिट सीधा हाइड हो जाएगा। आई होप दे मस्ट बी अवेयर यहाँ पे है। और जिनको हमेशा स्टॉक वैल्यूएशन का इश्यू आता होगा, तो वो F11 में डोंट इंटीग्रेट योर इन्वेंट्री। यहाँ पे जो डोंट मेंटेन इन्वेंट्री बट इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री नो रखिए। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स आप सब आप बनाइए, और बाद में आपका जो वैल्यूएशन है, वहां से आपको फीफो का वैल्यूएशन चाहिए। तो अगर इसमें तो अगर अभी टेम्पररी नेगेटिव आ रहा है, तो इसको अगर कंट्रोल आर कर दो, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। देन यू कैन जस्ट राइट क्लोजिंग स्टॉक में जाके वो फिगर यहाँ से लेके, यू गेटिंग माय पॉइंट। मैम, चैट्स में एक डाउट है। जैसे डाउट है कि कैन वी डू इक्विटी परचेज एंड सेल एंड हैव ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन रिपोर्ट्स? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो एआई टूल यूज करना पड़ेगा ना आपको। और वो तो विन में अपन डेट और वो यहाँ से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया आपने, परचेज रजिस्टर और सेल्स रजिस्टर, और उसके बाद आप उसको करने पड़ेगा, तो क्या क्या उसको वहां से करेंगे। देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स अवेलेबल, लाइक आपको हर दिन बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट बनते हैं, तो शेयर बाजार के रिलेटेड एक पूरा मॉड्यूल बना हुआ है। वो कुछ होगा 20-25 हजार में मॉड्यूल आता है, जिनका वॉल्यूम में काम होता है, वो टीडीएल डाल के, मॉड्यूल डाल के पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोट वहां से आता है, एंट्री हो जाता है टैली के अंदर। शायद उसमें कैपिटल गेन का रिपोर्ट मिलता है। मतलब अगर वो डिजाइन किया हुआ है, तो हमें या तो खुद को टीडीएल लिखनी पड़ेगी, या तो एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। इनबिल्ट टैली के अंदर वो फीचर्स नहीं अवेलेबल है, बट इन्स एंड आउट्स का डिटेल्स रिपोर्ट मिल सकता है। अगर जैसे कि मैं अपना वंदना में गया, तो मेरा म्यूचुअल फंड का यहाँ पे आपको दिख सकता है सब, परचेज का एंट्री है, तो हम लोग ने यहाँ पे डाला हुआ है, प्रोडक्ट का नाम डाल के आप एंट्री तो कर ही सकते हो ना। तो ये खास अभी अच्छा हुआ वो ऐप, किन्होंने क्वेश्चन पूछा, उससे दो तीन समझ लीजिए। पहली, आप पर्सनल अकाउंट्स में आपके म्यूचुअल फंड या शेयर्स का ट्रैकिंग करना, पर आप धंधा नहीं कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इंटीग्रेट तो करना ही नहीं है ना इन्वेंट्री। सो F11 में वहां पे इन्वेंट्री नो ही रखने का, सो दैट देन इट बिकम्स इजियर। नहीं तो वो क्या करेगा, वो स्टॉक का फिगर उठा के लेके आ जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट, सो इट विल गिव यू डिस्टॉर्टेड रिजल्ट। How do we configure the mutual fund which you showed? ओके, हाउ डू यू कॉन्फ़िगर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पहले तो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड एक ग्रुप मैंने बनाया है। यहाँ पे ग्रुप में जो आपका ऑल्टरमेंट मैं दिखा देती हूँ हमने कैसे बनाया है। इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट इन एमएफयू ऑनलाइन, अब वो मैंने अंडर म्यूचुअल फंड बनाया है। मेन इन्वेस्टमेंट टैली का इंटेक रखो, उसके बाद आप सब ग्रुप तो हमेशा टैली में बना सकते हो ड्रिल डाउन, क्योंकि आप एमएफयू और कोई दूसरे डीपी एजेंट के साथ काम कर रहे हो। सो अलग अलग आप ग्रुप बना दीजिए। जब आप ग्रुप बनाते हो, उसके बाद जब लेजर बनाओगे उसमें, तो
एनेबल इन्वेंट्री ऐसा वहां पे मॉड्यूल होता है। अभी ऑल्टर में जाके मैं एक बता देती हूँ, लेजर से HDFC अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, यहाँ पे ये जब जब भी आप बनाते हो, यहाँ राइट साइड में मोर डिटेल्स में जाइए और इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड यस कर दीजिए। तो इन्वेस्टमेंट में अगर आपको ट्रैक करना है इन्वेंट्री, तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा। ओके, और सेव कर दिया। बिल बाय बिल तो रखना नहीं है मुझे, तो मैंने इन्वेंट्री यहाँ पे सेव कर दिया। तो जब मैं ट्रांजैक्शन करने जाऊंगी, इट विल प्रॉम्प्ट मी द इन्वेंट्री। वंस आई इट प्रॉम्प्ट्स मी, सो ऑब्वियसली यू विल क्रिएट द इन्वेंट्री। एंड इन्वेंट्री में भी हमने ग्रुप बना दिया, जैसे अभी आपने देखा ही होगा स्टॉक समरी में कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है थ्रू प्रकाश है, थ्रू ICICI, मतलब जो जो अलग अलग है, तो हमने अलग अलग कैटेगरी वाइज ग्रुप बना दिए हैं। शेयर्स इज अ सेपरेट ग्रुप। ये इन्वेंट्री का रिपोर्ट है स्क्रीन के ऊपर बेसिकली। और एक चीज और आपको अगर मुझे समझानी है, आप देखो टैली का क्या काम है। अगर ये यूनिट है और ये नंबर्स है, तो यहाँ पे टोटल्स नहीं आएगा। बट यहाँ पे देखो खाली यूनिट्स में ही ट्रेडिंग किया है, इनवर्ड आउटवर्ड, सो इट विल गिव यू द टोटल फिगर ऑफ यूनिट्स ऑल्सो। So wherever there is a different unit, मतलब measure of units, measurement units, यहाँ पे टोटल नहीं आ सकता, because it is not on a single, मतलब अगर मैंने हर जगह पे यूनिट्स ही रखा होगा तो ही मुझे वो टोटल मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ इसमें जाएंगे, नाउ यू कैन सी द टोटल, बिकॉज ये आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूनिट, सो इट शुड बी यूनिक। वो जहाँ पे है वहां आपको टोटल दिखेगा। आई एम गेटिंग माई द डिफरेंस ऑफ रिपोर्ट्स। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये यूनिट्स है और यहाँ पे किधर नंबर्स है। सो टैली कैन नॉट ब्रिंग हियर द टोटल। ओके, सो यू गो टू टू ग्रुप, सेपरेट ग्रुप्स। म्यूचुअल फंड में मिलेगा F4 करके, आप शेयर्स में चले जाइए, शेयर्स में भी आपको टोटल मिलेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट क्या उनको?